melted wax can be a chemical change, and that is physical change, and the thread burning inside, that is chemical. ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में बर्निंग वाला पोर्शन जो है ना, बर्निंग ऑफ बर्निंग पोर्शन इज केमिकल, लेकिन उसमें एक होता है मेल्टिंग भी होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है, इट इज फिजिकल। बर्निंग ऑफ वैक्स इज केमिकल। So can you hear me? यस, आई कैन हियर यू। Hear me? हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। So the burning of candle is both physical and chemical change. It is both physical and chemical change. ठीक है, इट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, Sir, can you hear me? yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, sir. Sir, earlier my voice was not audible, and my class automatically left it. Okay. Rest of the students are not responding, so that's why I can't understand that all of you are listening me or not. Yes, sir, now I can hear you. Okay.
So the first question was burning of candle is which type of change? So the burning of candle is both physical and chemical change. Okay, where burning means chemical and melting of wax means physical. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Chart. Okay. The next question is ওয়েটিং রুমটা না আসছে আমি অ্যাডমিট করছি এটাই হ্যাঁ, সেটা করে নেবে। Sir, we will write this. yes yes you have to write this पहले क्या हुआ था? हाँ सर मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अभी ज्वाइन की, तो इससे पहले क्या हुआ था सर? इससे पहले कुछ नहीं हुआ था आज हम लोग दोनों चैप्टर का थोड़ा क्वेश्चन आंसर कुछ रिवीजन करेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट हम पूछे कि बर्निंग ऑफ कैंडल व्हिच टाइप ऑफ चेंज यही फर्स्ट क्वेश्चन है आज कुछ नहीं हुआ इससे पहले तो सर इसको कॉपी डाउन करना है? हाँ इसको नोट डाउन करना है जो भी क्वेश्चन बता रहे उसको नोट डाउन करना है ओके सर। ओके सर हेलो हाँ सर। हाँ बोलो सर वो आपने 1 नंबर के लास्ट लास्ट में जो आप लिखे हैं ना, एंड केमिकल चेंज, तो हाँ केमिकल चेंज के नीचे की दाग देना पड़ेगा? नहीं नहीं वो हम दिए उसमें उसमें कुछ नहीं करना है দেখতে পাচ্ছ না স্পটলাইটটা পাচ্ছি না সকাল থেকেই পাচ্ছি না না তো বাচ্চারা তো এইটা দেখতে পাচ্ছে না স্ক্রিনটা रात बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। आपका हेजी आ रहा है मेरे डिवाइस में। सर मेरे में तो कभी कभार हेजी आ रहा है, कभी कभार स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। यस सर, मेरा भी। सर माई ऑल्सो सेम प्रॉब्लम। Sir, I also grouped in the message if someone is telling that I have. বলো স্পটলাইটের অপশনটা আসছে না কিন্তু সকাল থেকেই আসছে না
না, আমি ওইখানে ওই তিনটে ডটে ক্লিক মারছি কিন্তু স্পটলাইটের অপশনটাই ওইখানে নাই। পিন তো তারাই আছে। সেটা তখন, কিন্তু আমার তো পিন তলাই আছে, এখান থেকে সরছেই না। অ্যাড পিন না রিপ্লেস পিন? জানি না, দেখতে তো পাচ্ছি স্ক্রিন, যা দেখতে পাচ্ছি এখন চলুক না, তারপর দেখছি। হুম, না, যেমন আছে এখন থাক। ठीक है, हुआ सबका? So please wait, it is sometimes becoming very hasty. Yes, sir, my one. So please repeat the last WA as after that what is written. Here, Yes, sir, I can't see. Sir, it is hazy with me. I asked the question was, burning of candle is which type of change? Burning of candle. So burning of candle is both physical and chemical change. Burning of candle is both physical and chemical change, where burning portion is chemical and melting portion is physical. Oh, okay, sir. Okay, sir. Done? Yes, sir, sir. Yes, sir, done. Done. Next question is, Yes, sir. cooking of food is which type of change? Sir, chemical change. Sir, chemical change. Chemical change. Sir, chemical change. Chemical change. Physical change कौन बोला? Sir, Nilanjan. Sir, Nilanjan. No, sir, I'm taking chemical change. हाँ, No, sir, I'm physical change. But after all, sir, chemical change. Then he said chemical change. yes. Initially he told that it is physical change. Okay, no problem. Actually, cooking of food is chemical change. And I hope you all know the answer why it is chemical change. Because after after cooking of food, that food cannot be get back its initial form. Okay, that's why it is chemical change. Okay, write it down. Sir, written. Sir, written. Sir, Okay, written. okay, okay. Rusting is Sir, it is chemical change. Sir, chemical change. chemical change. Okay.
रोटेशन, सर रोटेशन अभी हम बोल रोटेशन ऑफ मून, सर केमिकल चेंज, रोटेशन ऑफ मून, सर फिजिकल चेंज, सर फिजिकल चेंज, सर फिजिकल चेंज, सर फिजिकल चेंज, no sir, sir chemical change because it cannot be rotated back to its original position. Yes, sir. And sir, when it is happening, there was lots of music on the art, like reflecting of the light. Yes. ठीक है, ओके, but remember one thing, that chemical change, what was the definition of chemical change? That new substance formed. The change in which new substance forms. So for the rotation of moon, what is the new substance that is formed? Man, sir, change of position. हाँ, Means the effect, yes. Yes, it means the effect. इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? Axis. अर्थ के ऊपर, लेकिन वो इफेक्ट क्या बोल सकते हैं? मून का रोटेशन की वजह से हम लोग जो बोलते हैं दैट इज, एक तो होता है इक्लिप्स होता है, मून मून इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स होता है। उसके बाद मून के पोजीशन की वजह से मेरा होता है फ्लड वगैरह, ठीक है। लेकिन मून रोटेट कर रहा है तो मून में तो नया सब्सटेंस आया क्या? मून तो यहाँ पर जो था, मून तो यहाँ पर भी वही मून है, मून तो यहाँ भी वही रहेगा, और मून 10 साल बाद भी वही रहेगा। मून में तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं है, मून तो सिर्फ रोटेट कर रहा है। अब उसके रोटेशन की वजह से किसी और के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो तो हम लोग नहीं देखेंगे। मून सिर्फ रोटेट कर रहा है ना, सिर्फ मून रोटेट कर रहा है। अब मान लो जैसे हम लोग बचपन में, या अभी तो छोटे हो, अभी तो हम लोग करते भी हैं, हाथ में रस्सी बांधकर पेन या पेंसिल या पत्थर तो घुमाते हैं ना। तो उस टाइम पे, या फिर मान लो जब, हाँ बता रहे सुन लो, या फिर मान लो जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग के हाथों में तो फोर्स आता ही है, पतंग ऊपर जा रहा है, लेकिन पतंग का तो चेंज हुआ क्या? वो ऊपर जाने के बाद फिर तो नीचे आ ही जाता है। न्यू सब्सटेंस तो ही नहीं बना ना, न्यू सब्सटेंस नहीं बना, इसलिए ये हो जाएगा मेरा फिजिकल चेंज। हाँ ये ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। ऐसे था, तुम लोग तो नहीं, ऐसे था तो, हाँ बोलून। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा बोलून। कौन बोर्ड, कौन बोर्ड? हाँ अच्छा, अच्छा बेंतली हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ, আমি পড়াই তুলসী কলেজ রোডে। হ্যাঁ, তুলসী কলেজ রোডে সেই নিহার চক্রবর্তীর যে সিমেন্ট হার্ডওয়্যারের দোকান আছে, ওর ওর ওপরেই। হ্যাঁ, ওর ওপরে রুমটার নেওয়া আছে।
এখন তো ধরুন এই তরনার জন্য তো অনলাইনে চলছে, তো অনলাইনে সিস্টেম আমি বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছি। তো আপনি টাইম করে বলবেন, তখন আমি যাব, তাহলে হয়তো দেখা হতে পারে। আমার রেসিডেন্স রানীতলায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। রানীতলায় মাহাতোপাড়া। হ্যাঁ, 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 ওই বিজয় দাতুর বাড়ির প্রায় আর একটু নিচে আমার বাড়ি। না, পুকুরটা ক্রস করতে হবে না, পুকুরটার আগেই আছে। হ্যাঁ। ও আচ্ছা, এদিক যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছেন না, ওই বজরংবলী মন্দির পার তোলেন, তারপর পুতুলটা পার তোলেন, যে গলিটায় বিজয় দাতুর বাড়িটা, একটু নিচে দিকে নামলেই কালিদাস গুপ্তার বাড়ি বললেই বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলায় থাকবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ডান। Yes, sir, done. ওকে। নেক্সট, breathing of chalk into a small piece. Breathing of chalk into small piece is which type of change? Sir, physical. And physical. Physical. Reversible or irreversible? Sir, irreversible. Physical, Yes, sir, irreversible. irreversible. किसी तो डाउट है इसमें? No, sir. ओके, नोट इट डाउन। Yes, sir, done. ओके, Sir, done. ओके। नेक्स्ट, rotation of blades of fan Fan. is which type of change? Sir, it's physical change. It is physical change. अच्छा, reversible or irreversible? Always reversible. हाँ, Sir, reversible. रिवर्सिबल। तो देखो, अगर हम लोग रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन तो बोल सकते हैं फिजिकल, तो रोटेशन ऑफ मून फिजिकल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग फैन का ब्लेड जब रोटेट कर रहा है, ये तो हम तो ब्लो कर रहा है ना, एयर ब्लो कर रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ी होता है। फैन का ब्लेड तो फैन का ब्लेड ही रहा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो होगा फिजिकल। ऑन सेम कंडीशन, जो मेरा रोटेशन ऑफ मून था, दैट इज ऑल्सो फिजिकल। हाँ, फ्लड अगर बोले तो फ्लड मेरा केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज होगा और वो इरिवर्सिबल होगा। केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट बताओ, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट is which type of change? Hardening of cement. Sir, chemical change and irreversible chemical change. Why it is chemical change? Sir, because no new substance is made. No new substances. The chemical substance में तो new substance बनता है. New, Yes, sir. तो न्यू सब्सटेंस बनेगा ना हार्डनिंग होने पर. Yes, sir. क्या बनेगा, देखो क्यों बन रहा है उस तो समझो. मान लो ये रहा मेरा सीमेंट. सीमेंट का पैकेट सीमेंट का बैग हम लोग देते हैं, कभी भी घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कहीं भी तो हार्डनिंग एकदम एकदम पाउडर फॉर्म में होता है. ठीक है. अब वो हार्डनिंग कब होता है, हार्ड कब बनता है, जब इसके साथ वाटर मिलाया जाता है. और एयर भी, अगर हम लोग ओपन एयर में रखते हैं तभी वो हार्ड होता है. तो मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, मेन रेस्पॉन्सिबल है वाटर. तो वाटर क्या होता है, इसके साथ केमिकली बॉन्ड बना लेता है, केमिकली कंबाइन कर जाता है, तब जाकर ये हार्ड बन जाता है. तो एक न्यू सब्सटेंस हो गया, दैट इज केमिकल चेंज. ठीक है. तो हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज केमिकल चेंज. नेक्स्ट, growing up of plant. Sir, it's a chemical change. It's a chemical change. Irreversible. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं. हेलो, আচ্ছা বলুন. আচ্ছা আচ্ছা. হুম. হ্যাঁ, তুলটি কলেজ রোডে. হ্যাঁ, বাবান স্যারের স্টুডেন্ট ছিলাম. আচ্ছা, আমি থাকি রানীতলায়, কিন্তু পড়াই আমি তুলটি কলেজ রোডে. হ্যাঁ, 11-এর এই কয়েকজন স্টুডেন্ট ফোন তুলেছে, একই সাথে আমি স্টার্ট করব, এই 2-4 দিনের মধ্যেই স্টার্ট করব. পড়ানো সকালে দিতেই পড়াই. হ্যাঁ, মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার. আচ্ছা ঠিক আছে. সুদীপ্ত স্যার. সুদীপ্ত স্যার না সুদীপ স্যার? সুদীপ্ত কোথায় থাকেন উনি? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে. সোম মঙ্গল সূত্র বৃহস্পতি, তাহলে সকালে খাচ্ছে কটার সময়? স্কুল এখন তো খুলছে না. আহ, তো ঠিক আছে, আমি টাইমিংটা দেখছি, কারণ আরো স্টুডেন্টরা ফোন তুলেছে, আমি নিজে এখনো, আমারও তো ব্যাচ ইংলিশ মিডিয়াম গুলো চলছে, ওই জন্য আমি টাইমিং গুলো তুলেছি. হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি.
ঠিক আছে, আপনি বিকেল দিতে যদি ক্লাস চালাই তো অসুবিধা আছে? ওই ধরে নিন 4:30। দুটো সকালে তার এত টাইমিং ইস্যুতে হবে না, তার আমার নিজেরও যেমনি বৃহস্পতিবার ব্যাচ আছে, হবে না। সোম মঙ্গল আমার নিজেরও ব্যাচ আছে, হবে না। শনিবারটাও হবে না। তাহলে রয়ে গেল পরে আমাদের যে শুধুমাত্র বুধবার। প্রফেশনালি আমি মাই স্কুল কোচিংদের সাথে কানেক্টেড, আর চিরচুন্ডার একটা স্কুলের সাথেও কানেক্টেড আছি। আর এমনি পরীক্ষা তো দিচ্ছি। তো ঠিক আছে আমি, আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন তো হলে এখন অনলাইনেই হবে। Sir, I am not getting your voice. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আমাদের এত আসছিলেন, কাল পরশু তোলে একবার ফোন করে নেবেন। Sir, I ফিসটা 500। हाँ हाँ ठीक। Hello, sir. हाँ हुआ। ग्रोइंग ऑफ प्लांट इज केमिकल चेंज ना। Yes, sir. Irreversible. हाँ, ये तो केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल बोलना मैंडेटरी नहीं है, हम बोले थे, क्योंकि केमिकल चेंज क्या होता है, ऑलवेज इरिवर्सिबल। Yes, sir. ऑलवेज इरिवर्सिबल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट। सर ये मेंशन नहीं करना होगा irreversible है या नहीं है? नहीं, केमिकल चेंज अगर है तो उसमें मेंशन नहीं करना है, लेकिन फिजिकल चेंज है तो मेंशन करना है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। मेथिन अ solution by salt and water। सर केमिकल चेंज। सर ये हेजी दिख रहा है, एक बार फिर से बोलिए ना, मैं सुन नहीं पाई। मेथिन अ सॉल्यूशन बाय सॉल्ट एंड वाटर, मतलब पानी में नमक मिला देना, सिंपली घर में। सर केमिकल चेंज होगा, सॉल्टी वाटर बन जा रहा है। केमिकल चेंज होगा। यस सर। अच्छा, सब तो एग्री कर रहे हो ये केमिकल चेंज है? यस सर। अच्छा और सर ये फिजिकल चेंज। अच्छा, क्यों फिजिकल चेंज है भाई? सर क्योंकि अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा और सॉल्ट हम लोग को वापस से मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, एकदम करेक्ट आंसर। देखो, लेकिन सर, हाँ सर न्यू सब्सटेंस तो कौन होगा? यस सर। सर ये तो हमारे स्कूल में केमिकल चेंज ही किया गया है, देखो, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना। बता बता दे रहे सॉल्टी वाटर। बता दे रहे एक्चुअली इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब केमिकली रिएक्शन करेगा और एक न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज था तो ये भी कंडीशन था ना कि वो तो मेरा कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। और जो बोला जाता है ना यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, वाटर में बहुत सारे वैकेंट स्पेस होता है बीच में, ठीक है, बहुत सारा वैकेंट स्पेस होता है बीच में। ये हम लोग हायर क्लास में थोड़ा सा जाएंगे तो समझ में आएगा। वाटर हैव बीन सम वैकेंट स्पेस। ये जो सॉल्ट हम लोग ऐड किए, ये सॉल्ट जाकर इसी वैकेंट पोजीशन पे बैठ गया और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये सॉल्ट उस वैकेंट पोजीशन पर बैठ गया। अब वैकेंट पोजीशन पे सॉल्ट ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है।
अब जो बोलते हो कि हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो हम तो सॉल्टी मिलेगा, तो सॉल्ट तो अगर हम लोग सिर्फ टेस्ट करते, सिर्फ सॉल्ट तो अगर बाहर इंडिविजुअली टेस्ट करते तो भी सॉल्टी था, इसमें डाल दिए तो भी सॉल्टी है। अब पानी का टेस्ट थोड़ी बदला, वो तो सॉल्ट वाला टेस्ट हम तो समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम लोग इसको हीट करेंगे, उसके बाद जब हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा कि ये जो भी वाटर है ये वाटर वेपर बनते बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ गया तब हमको भीतर का अंदर फिर से वो सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। वाटर वेपर बनते बाहर चला गया, जिसको वापस से डिस्टिलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिक्विड भी मिल जाएगा और यहाँ हम तो फिर से सॉल्ट अलग हो गया, तो वापस से रिवर्स हो जा रहा है ना, वापस से रिवर्स हो जा रहा है। तो रिवर्स हो जा रहा है तो ये रिवर्सिबल चेंज है, तो रिवर्सिबल चेंज तो कभी भी केमिकल नहीं हो सकता है। दैट्स मीन इट इज फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये हम तो देखना है न्यू सब्सटेंस और वो प्रीवियस स्टेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यहाँ तो वो प्रीवियस स्टेट में जा रहा है, और अगर प्रीवियस स्टेट में जा रहा है तो वो केमिकल चेंज तभी नहीं बनेगा। अगर प्रीवियस स्टेट पे जा रहा है तो वो केमिकल चेंज तभी नहीं बनेगा। बट सर मैं तो ये जानती हूँ, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड मींस एनी आयोनिक कंपाउंड दैट इज soluble in water would experience as a chemical change. Yes sir, yes sir, it is written also in the book. हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। वो बहुत सारे केमिकल जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना वो रिएक्शन करने लगते हैं, वो सब तो वापस से नहीं ला सकते, लेकिन सॉल्ट वाला जो कंपाउंड है सॉल्ट तो हम लोग वापस ला सकते हैं। अब अगर तुम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तब वापस नहीं आएगा, तब केमिकल चेंज है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिजोल्व किए तो फिर उसको हीट देते थे बाहर निकाल ले रहे, लेकिन इस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तब नहीं होगा फिर। ठीक है, और बहुत सारे आयनिक कंपाउंड, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड जो है वो एक बार अगर सॉल्युबल हो जाए तो वापस से नहीं आ पाता है, तो वो केमिकल चेंज है, एकदम सही है। लेकिन सॉल्ट वापस से आ जाता है हीट करने पर। इसका सिंपल से एग्जांपल है ना, सी वाटर, सी वाटर से हम लोग सॉल्ट बनाते या नहीं बनाते। डांडी मार्च जो हुआ था, हिस्ट्री पढ़े हैं, तो डांडी डांडी मार्च में क्या होती है थे गांधी जी, नमक बनाने गए थे ना, यस सर, नमक तो बनाने कैसे बनाए थे, वहां पर गड्ढे कर दिए थे, बहुत सारा गड्ढा में वो समुद्र सीधा पानी तो रख दिए, अब सन का हीट से वाटर वेपर बनते निकल दिया और वहां पर हमको नमक मिलने लगा। यही तो सिंपल प्रोसेस था उस टाइम पे, तो ये तो फिजिकल चेंज है। हाँ, इसमें अदर सॉल्ट डिजोल्व कर दो दे तो वो मेरा केमिकल चेंज हो जाएगा, जो वापस नहीं आएगा वो केमिकल चेंज है। हुआ, सर हम लोग सॉल्ट एंड वाटर दोनों को ऐड, तो वाटर तो हम लोग को नहीं मिला, हम लोगों को तो सिर्फ अभी सॉलिड मिला है नहीं नहीं मिला है, evaporation मिला है, oil. वाटर वाटर तो भी मिला है। हम लोग जो वेपर में कन्वर्ट हुआ ना, अगर उसी वेपर तो कंडेंसेशन कर देंगे, टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तो हम तो ये देते यहाँ पर बोले तो क्या यहाँ पर हमको लिक्विड वाटर भी मिलेगा। मतलब ये जो वेपर जा रहा है इसको मान लो हम लोग हीट करने के बाद एक ट्यूब ट्यूब के थ्रू पास कर रहे हैं, और फिर इस ट्यूब को ठंडा कर दिए, कोल्ड कर दिए, तो यहाँ पर हमको लिक्विड भी मिलेगा। यहाँ लिक्विड मिला और यहाँ पर सॉल्ट मिला, दोनों मिला।
ठीक है, हम तो दोनों मिलता है। थर्टीन ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? सर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज सर, ऑफ कोर्स फिजिकल। ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज, बहुत अच्छी बात है। क्या फिजिकल क्या? इरिवर्सिबल। फिजिकल इरिवर्सिबल, ठीक। लेकिन अब बताओ, certain fruits kept in open air for 2 hours, क्या हो जाएगा? सर केमिकल चेंज। सर वहाँ तो बैक्टीरिया है ना, जो वो एक साथ कंबाइन करके फ्रूट को एक रोटेट कर देगा। सर वहाँ पर कटेज नहीं, कट होना चाहिए। हाँ तो कट फ्रूट्स है ना, अच्छा। दिस इज केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है। अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग तो मान लो कि ये रहा मेरे पास, हाँ, मान लो कि ये एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल तो जब हम लोग स्लाइस करते हैं तो उसका कलर कैसा रहता है? व्हाइट रहता है ना पहले। यस सर। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो तो ऐसा बन जाता है, ब्राउन। ऑरेंजिश सर वो टाइप। ब्राउन टाइप का हाँ, होगा। ब्राउन ऑरेंज, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज होता है, यस सर, थोड़ा डार्क थोड़ा हो डार्क हो जाएगा। जाता है। फिर मान लो पोटैटो, पोटैटो तो हम लोग स्लाइस करते रख दिए पोटैटो, तो देखना पोटैटो ब्लैकिश टाइप हो जाता है। सर रेड ब्लैक हो जाता है। हाँ, मेजरली ब्लैकिश हो जाता है। यस सर। तो ब्लैक हो रहा है मतलब तो यहाँ और तो सर स्मेल भी होता है। स्मेल भी होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है ना। यस तो सर। कलर चेंज तब होगा तो ये केमिकल रिएक्शन से बाद ही होगा। यस सर, इसको दोबारा वापस ला भी नहीं सकते। इसको दोबारा वापस ला भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज। तो सिर्फ फ्रूट्स तो काटना, वो फिजिकल हुआ, इरिवर्सिबल हुआ। उसी कटे हुए फ्रूट्स को अगर हम लोग कुछ देर के लिए ओपन रख देंगे तो वो मेरा केमिकली रिएक्शन कर जाएगा। सर एक क्वेश्चन। बोलो। सर एक बार ऐसा मैं ट्राई की, एक एप्पल को कट की, ठीक है। हाँ और उसके ऊपर ना वो जो लेमन होता है, हाँ, लेमन जूस उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दी। फिर और थोड़ा देर तक छोड़ दी, मतलब एक के ऊपर उसका हाफ पोर्शन के ऊपर नहीं की, और जो दूसरा हाफ था उसके ऊपर लेमन जूस अप्लाई कर दी। तो थोड़ी देर बाद जब देखी उसको, तो एक जो जिस पर लेमन जूस अप्लाइड नहीं था वो वाला वही ऑरेंज ब्राउन हो गया। और दूसरा वाला जो था जिस पर लेमन जूस अप्लाइड था वो वाला, उसमें कोई चेंज नहीं। सर ऐसा क्यों होता है? लेमन जूस उसमें करता कैसे थे कैसे? यहाँ पर जब लेमन जूस दे दिए ना, लेमन जूस में क्या है? साइट्रिक एसिड है। यस सर। तो वो क्या किया कि इसके ऊपर एक लेयर का जैसा बना दिया, जिसके लिए क्या हुआ कि एयर जो है, एयर डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाया।
तो इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन होने नहीं, जो साइट्रिक एसिड है उसके ऊपर आ रहा है। उससे ऊपर आ रहा था। तो चेंज जो भी हो रहा है वो साइट्रिक एसिड के ऊपर आ रहा है, जो विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एसिड है। एसिड तो अगर हम लोग ओपन एयर में रखेंगे फिर भी तो कुछ नहीं होगा। तो वो एक अलग से जो लेयर बन गया ना, वो एक अलग से जो लेयर बन गया एसिड का, जिसके वजह से वो अंदर वाले के पास नहीं जा रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मीन्स वो एक लेयर बनकर प्रोटेक्ट कर रहा है। वो एक लेयर बनते प्रोटेक्ट कर रहा था एकदम, वो एक लेयर बनते प्रोटेक्ट कर रहा था। अदरवाइज क्या हो रहा है, तो ये फ्रूट तो काट दिए, तो फ्रूट तो काटने के बाद हम पोटेटो तो काट दिए चलो, लेकिन पोटेटो में भी तो एसिड है, हम तो पता है। तो वो डायरेक्टली देखो एयर के साथ एक्सपोज हो चुका है। तो वो रिएक्शन के बाद जो भी चेंज कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? पोटेटो के सरफेस के ऊपर ही कर रहा है, जिसलिए वो हमको विजिबल है, दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, प्रिवेंट कर दे रहा है। ठीक है, ये प्रिवेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट। पोटैटो के ऊपर भी अगर हम लोग सिट्रिक एसिड यानी कि लेमन जूस अप्लाई कर देंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। इसके ऊपर पोटैटो हाँ थोड़ा बहुत तो सेफ होगा, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि पोटेटो भी किस कंडीशन पे है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वीक एसिड? कोई भी बताओ। those acids which dissociate partially in the aqueous medium called weak acid. होते कौन बोले ये आंसर? प्राप्ति। ठीक है, दोस एसिड व्हिच Those acids dissociate partially with in aqueous medium is called weak acid. हाँ Called weak acid. For example, MgCOH2. क्या बोले? Sir, NH4OH, MgCOH2. सारा गलत बता दो। आई एम आस्किंग अबाउट एसिड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट बेस। आई एम आस्किंग वी एसिड का एग्जांपल है HCOOH. हाँ HCOOH और एक फॉर्मिक एसिड. हाँ एसिटिक एसिड CH3COOH. हाँ दिस इज फॉर्मिक एसिड। तुम MgNaOH कहाँ से चले गए? वो तो बेस है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो, तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये है वीक एसिड। और भी था, बोले थे ना कि ऑल सारा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड था सब होगा मेरा वीक एसिड। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड. सब सब और एकदम जो याद आ रहा है, लैक्टिक से शुरू करते मैलिक होते हुए सारा मेरा बनेगा वीक एसिड। तो अभी हम तो बताओ, ये तीसरा एग्जाम्पल है। चलो, ये तीसरा एग्जाम्पल है। सर ये एग्जांपल है आपका वीक बेस का. दिस इज वीक बेस, बहुत अच्छे। वीक बेस, बहुत अच्छे। और ये वीक बेस. दिस इज ऑल्सो वीक बेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? MgOH whole 2. What is the name of this compound? मैम मैग्नीशियम. सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बहुत अच्छे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस इज
सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखते रखना है, ठीक है। और स्कूल में टीचर जो बोलता है ना, स्कूल एग्जाम में उसी तो लिख देना है, क्योंकि फिर उसके साथ डिबेट करते तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो समझा मार्क्स कम मिलेगा, ठीक है। स्कूल एग्जाम में जो भी बोला है, अगर तुम तो स्कूल एग्जाम के साथ अगर कुछ भी डिफरेंट कर रहा है तो स्कूल एग्जाम से लिया अप टू 9 बोर्ड में जाकर एकदम जो समझाएंगे वही सही लिखना है, अदरवाइज गलत नहीं लिखना है। अभी तेरे स्कूल में तुम लोग अगर बोलो देती नहीं हम लोग कहीं और ये पढ़े हैं, तो वो लोग फिर मानेगा नहीं, क्योंकि वो अपना गलती तो देखेगा नहीं, उल्टा तुम तो मार्क्स कम देगा। और सिर्फ अभी के लिए नहीं, जब तक तुम लोग क्लास 10 तक जाओगे तब तक वो तुमको परेशान करेगा। तो इसलिए क्या करना है, स्कूल के साथ स्कूल के हिसाब से चलना है, बाकी अपना नॉलेज लेकिन सही रखते चलना है। बाकी जगह पे जब कॉम्पिटिटिव्स में जाओगे, जहाँ बाहर निकलते जब कुछ और स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल के साथ जब कम्पीट करोगे, तब ये सारा चीज तुमको समझ में आएगा और फिर ये तुम लोग तब बेनिफिट रहेगा, यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ सर एक हाँ आप बताए थे, मेरे को जितना तक याद है, एक एंड बी स्ट्रिंग वाला जो है, कुछ हाँ, ऐसे का वो फॉर्मूला बताए थे, वो एक बार फिर से बताए ना, कुछ एच सी करके था। यही वाला फॉर्मूला है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन, हाँ HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? बी एंड बी एंड स्ट्रिंग हाँ, बीज स्टीन एंड एंट एंड स्टीन, स्ट्रिंग। ठीक है। एंड्स एंड बीज स्टीन में मिलता है मेरा फॉर्मिक एसिड, तो यही फॉर्मूला है HCOOH। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? जब इतना पूछे तो ये भी बता दो, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? सर विनेगर। विनेगर। बहुत अच्छे, सर CH3COOH। बहुत अच्छे, CH3COOH, एकदम सही, ठीक है। हम शायद अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बताए थे, तो इसका ये यूज हम लोग क्या बोले थे, कहाँ मिलता है ये, कौन सा चीज बनाने में काम आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड? सर विंडो क्लीनर। बहुत अच्छे। सर कोलिन वगैरह। हाँ वही विंडो क्लीनर, कोलिन वगैरह, प्राप्ति बोले ना, बहुत अच्छे, विंडो क्लीनर। अभी बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा सब्सटेंस बनाने में लगा था? सर इनो। सर जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एकदम डाइजेशन में जो, में हेल्प करने वाले सर। हाँ इसको बोला जाता है ना एंटासिड्स, मतलब ये कंपाउंड्स तो बोला जाता है एंट एसिड्स, एसिड का उल्टा। जब बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तभी एसिडिटी होता है, तो एसिड तो न्यूट्रल कौन करेगा, एसिड तो न्यूट्रल बेस करेगा, यस सर। इसलिए उसको बोला जाता है एंटासिड, एंटासिड, ठीक है। और उसमें प्रेजेंट है बेस, कौन सा बेस, बेस विद बेस सर सर MgOH होल टू। अभी बताओ सोप, सोप में क्या प्रेजेंट है, एसिड है या बेस है? सर बेस। सर सोप, बेस है। सोप में बेस है, कौन सा बेस है, विद बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? सर वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों के स्किन को खराब करता स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग का स्किन को खराब करेगा, लेकिन अच्छा यहाँ तक नोट डाउन हुआ है क्या? हाँ बोलो बोलो। है। सर MgO2 में सर ये सब हम लोगों को नोट करना है। हाँ नोट तो शुरू से ही बोले ना, तो नोट करते चलो। सर नोट तो पहले हम करा दिए थे। हाँ वो भी ठीक है, ये सब तो नोट डाउन किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तब? बोल रहे थे कि वो एसिड है ना डायजी, वो हाँ 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 एकदम, MgOH होल टू ही। वही। हाँ हाँ हाँ, डाइजीन ले लो, इनो ले लो, और भी जो भी बनता है जो एसिडिटी तो रिलीफ करेगा, जिसमें एसिडिटी रिलीफ होगा उसमें विथ बेस प्रेजेंट होता है, और उसका कंपोनेंट हिसाब से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ही रहेगा। ओके सर। अब ऐसा मत करना कि एसिडिटी हुआ तो लैब से जाते मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते खा लेंगे, वो मत करना तभी, ठीक है, क्योंकि उसको और भी प्रोसेस किया जाता है। यस सर, उसमें और कुछ हाँ मिलाया
अब देखो यहाँ पर हम बता रहे ये जो सोप बोले, सोप में तो तुम लोग बोले बेस है, तुम लोग बोल रहे हो इसमें कौन सा बेस है, विद बेस, With base. क्योंकि स्ट्रॉन्ग Yes, बेस, sir, with base. हाँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो स्पिन तो हम करेगा, Yes, sir. but this is Yes, wrong, sir. but this is wrong. Soap does not contain with base, soap contain strong base. सर हाइड्रोजन सोप आपने तो कहा था कि कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों का स्किन को खराब करता है। एकदम करता है। अब देखो बात क्या है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल दो। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज फॉर्मूला इज NaOH KOH। KOH। अब बात तो समझो, स्ट्रॉन्ग बेस में ना, सॉरी सोप में ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हिसाब से रहते ही नहीं है, बात यहाँ पर है। जब NaOH के साथ रहेगा तब ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, तब ये हार्मफुल है। लेकिन जब सोप बनाता है तो ये ऐसे नहीं होता है, ये इसके साथ एक लॉन्ग लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल, हाँ एक सेकंड पूरा सुन लो, फिर तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हम कर देंगे। अभी हम तो सिर्फ ये बताओ, ऑर्गेनिक एसिड का तो एग्जांपल पता है, देखो कौन कौन सा पता है बता रहे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इतना पता है। टार्टरिक एसिड वो भी पता है, हाँ टार्टरिक एसिड। तो स्पेशली जब कौन सा ऑर्गेनिक एसिड लिया जाता है सोप प्रिपरेशन के लिए, टार्टरिक एसिड तो लिया जाता है, टार्टरिक एसिड। और इसके बाद भी, इससे भी लॉन्ग चेन देखो, लॉन्ग चेन मतलब क्या, इतने लंबे चेन, इतने लंबे चेन मतलब बहुत सारे कार्बन उसमें प्रेजेंट है, इतने लंबे चेन जैसा एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसके साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाया जाता है। उसमें क्या होता है कि ये NaOH ब्रेक कर जाता है, NaOH के हिसाब से नहीं रहता है, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। हम तो पता है ना, एसिड और बेस अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ना। तो यहाँ भी देखो ऑर्गेनिक एसिड के साथ ये बेस तो मिला दिए तो एक सॉल्ट तो बनेगा, वो सॉल्ट ही मेरे सोप है, वो जो सॉल्ट बनाना वही मेरा सोप है। बस उसमें क्या करता है, कुछ फैटी एसिड्स तो दिया जाता है, कुछ परफ्यूम्स वगैरह मतलब मिलाया जाता है, कुछ परफ्यूम्स दे दिया जाता है, कुछ कलर मिला दिया जाता है, फिर जाते वो थोड़ा नल, हाँ पूरा का पूरा सोप ही एक सॉल्ट है, जिसमें ये सारे कुछ कंपाउंड को मिलाकर उसको नरम किया जाता है, उसका टेस्ट मतलब स्मेल दिया जाता है, उसमें वो लेदर फॉर्म हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फैटी एसिड्स ये सब से आता है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, ये जो सोडियम वाला पोर्शन है ये इस लॉन्ग चेन के एंड पे जाकर बैठ जाता है, और यही मेरा बनता है सोप। Yes, sir. अब बोलो तीसरा क्या डाउट था, क्या बोल रहे थे। Listen, I am telling that NaOH when is used in the soap, then it is used in a small amount. डेफिनेटली स्मॉल अमाउंट, क्यों स्मॉल अमाउंट, देखो ये हो दिया स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड, Weak acid. Weak acid. वीक एसिड। तो हमको अगर काउंटर अटैक करना है तो इसके हिसाब से इसको कम लेंगे, बहुत ही कम लेंगे, तब जाके वो न्यूट्रल बनेगा। Yes, sir. देखो हम तुम लोग तो बोले थे ना, जब इंडिकेटर पढ़ाए थे तब बोले थे ना कि टर्मरिक में सोप का कलर जो चेंज होता है वो बेस वाला कलर चेंज होता है, बोले थे, याद करो। Yes, sir, आप बोले थे indicator. इंडिकेटर, और तुम तो बोले थे कि वो डायग्राम भी बनाना, एक टर्मरिक पेपर, टर्मरिक ले लेना, फिर सोप से उसके ऊपर डिजाइन बनाना तो कलर चेंज ग्रीन दिखाई देगा। Yes, sir, मैं की थी उसको. ठीक थी ना, तो बस
थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिखा रहा दिखा रहा था। हाँ, तो क्यों दिखाया? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था ना, तो बेस वाला कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिया। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो एसिड वाला दिखाता, लेकिन एसिड तो वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी तो वो बेस का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला हमको। यस सर, यस ठीक है, तो सोप कंटेंस स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, इसीलिए वो हार्म नहीं करता है। और उसके साथ तो ये सारे कंपाउंड्स मिलाकर उसको यूज करने लायक बना देते हैं। अब उस हिसाब से हम लोग तो बॉडी के अंदर तो HCl भी है, तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। यस सर। तो ये बॉडी तो हार्म करता है या बॉडी के लिए यूजफुल है? सर बहुत हार्म करेगा सर, हार्म करता है। अरे बॉडी के अंदर जब HCl प्रेजेंट है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो हार्मफुल है या वो बॉडी के लिए यूजफुल है? सर ये सर वो बॉडी के लिए यूजफुल है, हाँ लेकिन अगर तुमने उसको ऐसे टच किया हाँ, क्योंकि वो उतना स्ट्रांग नहीं बनता है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। ये फूड तो डाइजेशन करने में हेल्प करता है उस टाइम पे, ठीक, क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए। तो वैसा ही सोप के लिए भी होता है कि भले वो बेस स्ट्रांग हो, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में है, जिसके लिए वो हमको उतना हार्म नहीं करता है। और उसको यूजफुल बनाते हैं ये सब फैटी एसिड, परफ्यूम्स, कलर और भी कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स उसमें दिया जाता है, जो जिसके लिए टीवी में ऐड आता है ना, डब साबुन लो, पियर साबुन लो, और भी कितने साबुन निकला है जिसका कलर है ट्रांसपेरेंट है, बस यही सब, और कुछ नहीं है। मेन मेन सोप बनाने का तरीका यही है, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, उसके साथ NaOH या फिर KOH भी ले सकते हैं। घर में भी बनता है सोप, पता है? घर में भी बनाए हो तो अभी सोप? सर सोप बेस से उसको बना सकते हो। हाँ एकदम एकदम, सर हम मैंने सोप पेपर बनाया है घर में। बहुत अच्छी बात है, सर मैंने भी। एकदम वही तो, बस वही काम कर रहा है ये भी। हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो हम लोग तभी स्कूल एक्टिविटीज में करवाया गया था, तो हम लोग भी बनाए थे उस टाइम पे, लैब से तो हम लोग तो दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था, हम लोग भी स्कूल में बनाए थे सब। तो ये बन जाएगा, ये होममेड भी होता है। और सर लिटमस पेपर क्या होता है? इस पेपर में क्या डाला जाता है कि वो ऐसे सर उसको हिबिस्कस को अगर किसी पेपर पर रब करेंगे तो वो लिटमस पेपर बन जाएगा। मतलब क्या है ना कि वो जो लीचेन है ना, लीचेन जो ट्री है, उसका अच्छा से मतलब उसका अच्छे से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक पेपर के ऊपर ड्राई कर लिया जाता है। वो जब भी ड्राई होगा उस पेपर के ऊपर वो एडहेसिवनेस की तरह चिटक जाएगा। बस वही मेरा इंडिकेटर के हिसाब से काम करेगा। हम लोग सॉल्यूशन के हिसाब, लिक्विड फॉर्म सर जब हम सॉल्यूशन को भी लिटमस के तरह हम तो यूज कर सकते हैं। एकदम कर सकते हो, वही बोलने जा रहे थे, तुम सॉल्यूशन तो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं हिबिस्कस को पेपर पर रब करके वो वाला जो होता है वो की थी। अच्छा कैसेट में देख सकते हैं। वो जो पेपर पर हिबिस्कस को रब किए अच्छा, तो वो एक लिटमस पेपर बन गया ना। हाँ एकदम एकदम। चलो, तो आप एक बार सोप बनाने का एक बार फॉर्मूला बता सकते मतलब घर में। यस सर, यस सर। प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर हम तब डिटेल्स में तुम लोग तो तभी समझा देंगे, ठीक है? प्रोसीड्यूर थोड़ा मतलब घर में बनाने के लिए ये एसिड्स और ये बेस फिर जाते, ये कुछ सिंथेटिक्स भी हमको चाहिए, सब लेते थोड़ा अच्छे से प्रोसेस तो बोलना पड़ेगा, उसके लिए तब ये क्लास देंगे जब लैब बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जब होता है ना, एडवांस क्लासेस, तब बता दिया जाएगा। ओके सर, सर प्लीज बताइएगा। हाँ हाँ एकदम एकदम बता देंगे, एकदम बता देंगे। थैंक यू सर। हाँ बता देंगे। अ, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज किए आज, ठीक है? ऑलमोस्ट दोनों चैप्टर का बेसिक एंड मॉडरेट सारा टॉपिक एकदम डिस्कस हो गया, दिमाग में बैठ गया है। अभी भी किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में दोनों में? नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो करा देंगे। क्या बोले चैप्टर का नेम एक बार बताओ? केमिकल केमिकल
केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में जो भी टॉपिक बचा है हम वो पढ़ा देंगे, केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। तुम एक काम करना, सिर्फ इस चैप्टर का पीडीएफ एक बार ग्रुप में जरूर सेंड कर देना। सर ग्रुप में तो ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज ऐसा कर दिए हैं बात हम सर। ऐसा कर दिए, ठीक है, हम उसे तो थोड़ी देर के लिए हटवा देंगे, तो उस टाइम में सेंड कर देना एक बार। सर आप तो व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो मैं सर उसे पर्सनली सेंड कर देंगे आपको अगर नंबर प्रोवाइड। यस सर। ठीक है, इस नंबर पे सेंड कर देना। ये कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके चलो, ठीक है, तो फिर आज स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।